Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying chapter 13, direct and inverse proportions from class 8th maths. In our previous video, we completed the first 5 questions from exercise 13.1 and today we will be completing this exercise by taking up the remaining questions from it. And so here we start with question number 6 from exercise 13.1. We have here, in a model of a ship, the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meters high. If the length of the ship is 28 meters, how long is the model ship? Here we have been shown one model of a ship and it has been said in this model the mast of the ship is 9 centimeter high. Here this pole is said to be the mast of the ship. ये जो pole आप देख पा रहे हैं इसे mast कहते हैं, जिसके साथ ये sail attached होता है and it supports the sail of the ship. And so here in this model the height of this mast is given as 9 centimeter, जबकि जो actual ship है जिसका कि ये model show किया गया है उस actual ship में जो mast है वो 12 meters high है. और फिर हमें यहाँ actual ship की length दी गई है 28 meters और पूछा है मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी. तो जो पूछा है उसी को हम x सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं. हियर वी आर टेकिंग द यूनिट एज सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में भी जो मास्ट की हाइट दी गई है मॉडल में वो सेंटीमीटर्स में दी गई है. With his, here we see that there are two quantities that are being connected here. One is the measurements in the actual ship and the other quantity is the measurement in the मॉडल शिप. दो मेजरमेंट्स दिए गए हैं, एक तो एक्चुअल शिप में और दूसरा मॉडल शिप में. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है, जो पूछी है, इसे हम टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है. फर्स्ट वी राइट हियर, लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी x सेंटीमीटर. देन वी हैव व्हाट वी हैव बीन गिवन, द मेजरमेंट इन द मॉडल शिप. ये हमें एक क्वांटिटी दी गई है. वी हैव बीन गिवन द मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर एंड देन वी टेक द मेजरमेंट्स इन द एक्चुअल शिप विच हैव बीन गिवन इन मीटर्स. ये हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं. ये वो दो क्वांटिटीज़ हैं जो इस क्वेश्चन में दी गई हैं. अब यहाँ पर जो मॉडल शिप में मास्ट है उसकी हाइट दी गई है 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल शिप में है 12 मीटर्स. सो हियर वी हैव 9 and 12. Then we have been given the length of the actual ship as 28 meters and then we have taken the length of the model ship as x सेंटीमीटर. तो यहाँ पर x आ गया. अब यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटीज़ पर फोकस कीजिए. These two quantities are directly proportional to each other. ऐसा इसलिए कि जो एक्चुअल शिप है उसके जो मेजरमेंट्स हैं उन्हीं को रिड्यूस करके एक छोटा वर्जन बनाया गया, एक मॉडल बनाया गया. तो सभी मेजरमेंट्स को प्रोपोर्शनेटली ही तो लेस किया होगा और ऐसे में ये दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी. इनके सभी पार्ट्स के जो रेशो होंगे मॉडल शिप के और एक्चुअल शिप के जो सभी मेजरमेंट्स होंगे, डिफरेंट पार्ट्स के जो मेजरमेंट्स होंगे, उन सब के जब हम रेशो लेंगे तो वो सभी इक्वल आने चाहिए. और ऐसे में हम कह सकते हैं ये दोनों क्वांटिटीज़ directly proportional हैं. We write here these two quantities are directly proportional. और ऐसे में जब हम इन क्वांटिटीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ के रेशो लेंगे तो वो रेशोज़ इक्वल होंगे. Now we take the ratios. This implies the ratio 9 by 12. This is equal to x upon 28. Now we have to find the value of x. We can easily cross multiply. 9 into 28 is equal to 12 into x, or we see x will be equal to 9 into 28 upon 12. Cancel by 3. 3 3s are 3 4 times, and then we can cancel by 4 1 time and 7 time. We have 3 into 7 equal to 21 centimeters, and so we can say that the length of the model ship
it is 21 centimeter. Hence, the length of the model ship is 21 centimeter. Okay, with this we move towards the next question. Question 7. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar, 1.2 kg of sugar? Now you must have seen the sugar crystals at your home, definitely. And here in the question it has been given that in 2 kg of sugar there are these much crystals. And here we have been asked how many crystals are there in 5 kg of sugar and in 1.2 kg of sugar. Let us suppose that there are X crystals in 5 kg of sugar and Y crystals in 1.2 kg of sugar. First of all, we take the unknown values and represent them by using some variables. So here we write the solution. Let the number of crystals in 5 kg of sugar be X and in 1.2 kg of sugar be Y. Now think of the two quantities that are being taken here in this question. What are those two quantities? The first quantity is the weight of the sugar and the second quantity is the number of crystals in the sugar. You can see the weights, they are given as 2 kg, then 5 kg, then 1.2 kg, and the number of crystals given is 9 into 10 raised to the power 6. Then we have taken X and Y also. So these are the two quantities. We now represent all this information that has been given and also that has been asked in the form of one table. We form one table here in this way. Let us take all the information in this one. Yes, the first quantity is weight of sugar. This we can write, obviously the unit is in kg, and then the second quantity is number of crystals. Now, it has been given the weight of sugar, it's 2 kg and then the number of crystals is 9 into 10 raised to the power 6. और जब हम weight of sugar ले रहे हैं 5 kg तो number of crystals हैं X और जब weight of sugar हम ले रहे हैं 1.2 kg तो number of crystals हमने assume किए हैं Y. Now this is the information that has been given, that has been asked. Everything is inside one table and now here we will focus on these two quantities. इनमें relationship सोचिए, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस, दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा वेट होगा शुगर का उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे और इसका रिवर्स भी सही है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वेट होगा शुगर का. तो इस तरह से ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और ऐसे में इनकी जो अलग अलग वैल्यूज़ के रेशो हम लेंगे वो रेशोज़ भी इक्वल होंगे. वी टेक हियर the weight of sugar and the number of crystals are directly proportional to each other, and so here we have these two ratios, 2 upon 9 into 10 raised to the power 6. This is equal to the ratio 5 upon x. ये ratios इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 इंटू एक्स इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6. फ्रॉम हियर x विल बी इक्वल टू 45 into 10 raised to the power 6 upon 2. Divide 45 by 2, you will get it 22.5 into 10 raised to the power 6. Now this is not in the standard form. ये जो number है 22.5, this is not less than 10 and so this is not in standard form. We will convert it into
स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके लिए ये डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे इस तरह से 2.25 ले लेंगे, और क्योंकि यहाँ 1 डिजिट का जंप ले रहा है डेसिमल, तो जो एक्सपोनेंट है वो होगा 1, और लार्ज नंबर है तो ऐसे में पॉजिटिव 1 होगा, +1 will be the exponent, and then we have 10 raised to the power 6 also. With this we can write it as 2.25 into 10 raised to the power 7. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऐसे में एक्सपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे, बेस सेम है. With this we get the value of x, and x is the number of crystals in 5 kg of sugar. So we can write hence the number of crystals in 5 kg of sugar is 2.25 into 10 raised to the power 7. ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और रिमेनिंग है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन. ऑल्सो नाउ व्हाट वी कैन सी, दीज टू रेशियोज विल ऑल्सो बी इक्वल. यहाँ पर 2/9 into 10 raised to the power 6, ये रेशो इक्वल होगा 1.2 अपॉन y के, और यहाँ से हम y फाइंड आउट करेंगे. वी टेक हियर 2/9 into 10 raised to the power 6, this is equal to 1.2 upon y. Again cross multiply, this will imply 2y equal to 1.2 into 9 into 10 raised to the power 6. From here y will be equal to 1.2 into 9 into 10 raised to the power 6 upon 2. Cancel this by 2, this will go 0.6 times, and y will be now equal to 9 into 0.6, it will be 5.4 into 10 raised to the power 6. ये अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ऐसे में हम लिख सकते हैं hence the number of crystals in 1.2 kg of sugar is 5.4 into 10 raised to the power 6, because here y represents this number of crystals. With this we have done question 7. Next we take question 8. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometers. अब आप देखिए ये दो अलग अलग लेंथ्स हैं, ये तो है मैप पर, और ये कहाँ है, एक्चुअल डिस्टेंस है. She drives on a road for 72 kilometers. What would be her distance covered in the map? अब यहाँ पर दो तरह के डिस्टेंस हैं, एक तो मैप पर और दूसरा एक्चुअल डिस्टेंस. जो यहाँ पर मैप में शो हो रहा है वो डिस्टेंस ऑब्वियसली छोटा होगा, क्योंकि मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टर वर्जन में रिप्रेजेंट करता है. और ऐसे में जो दोनों मेजरमेंट्स होंगे मैप पर भी और एक्चुअल मेजरमेंट्स जो होंगे, एक्चुअल डिस्टेंस जो होंगे, वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. सो हियर फर्स्ट वी टेक द अननोन वैल्यू एज x. क्या पूछा है, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. सो लेट अस टेक द डिस्टेंस कवर्ड बाय Rashmi in the map. Let the distance covered by Rashmi in the map be x, and what will be the unit? It will be centimeter in case of map. ये क्लियर हो गया. अब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. इसके लिए एक टेबल बनाएंगे इन दिस वे, और यहाँ जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो भी सोचिए आप कौन सी दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं जिन्हें हमें कनेक्ट करना है. एक तो है डिस्टेंस ऑन द मैप एंड देन द एक्चुअल डिस्टेंस. वी राइट हियर डिस्टेंस ऑन द मैप it is taken in centimeter, and then actual distance ये हो गई सेकेंड क्वांटिटी, इसे हम लेंगे इन किलोमीटर्स. ओके, यहाँ क्या दिया गया है,
1 centimeter on map, this is 1 centimeter, it is equal to 18 kilometers the actual distance. और फिर जब एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर्स कवर कर रही है रश्मि, तो वो मैप पर कितना होगा, वी आर टेकिंग इट टू बी x सेंटीमीटर. और अब ये दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, ये हम बात कर चुके हैं. और ऐसे में हम यहाँ पर ये रेशोज़ इक्वेट करेंगे. 1/18 इक्वल टू x/72. हमेशा याद रखिएगा, जो स्केल ऑफ अ मैप है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड होता है. एंड सो वी राइट हियर द स्केल ऑफ अ मैप इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हेंस वी कैन टेक हियर 1/18 इक्वल टू x/72. जब भी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनके डिफरेंट वैल्यूज़ के जो रेशो हैं वो इक्वल होंगे, और वही हमने यहाँ किया है. यहाँ से आप देख सकते हैं 72/18 दिस विल बी इक्वल टू x और x विल बी इक्वल टू 4. और ऐसे में जो डिस्टेंस रश्मि ने ट्रैवल किया है, कवर किया है, वो मैप पर कितना दिखाई देगा, 4 सेंटीमीटर. और यही हमसे पूछा था, what would be her distance covered in the map. So we can write the distance covered in the map, the distance covered by Rashmi in the map would be 4 सेंटीमीटर्स. 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें मैप पर शो होगा, और एक्चुअल डिस्टेंस है 72 किलोमीटर्स. द क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट वी टेक हियर क्वेश्चन 9. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow this much long. तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है हाइट ऑफ वर्टिकल पोल और फिर है लेंथ ऑफ इट्स शैडो. फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो cast by another pole this much high and the height of a pole which casts a shadow 5 meters long. तो यहाँ पर 3 अलग अलग पोल्स हैं और अकॉर्डिंगली उनकी शेडोज़ हैं. तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो अपने आप ही माइंड में क्लियर हो जाएगी. तो पहले हमसे जो पूछा गया है उसे वेरिएबल से डिनोट करते हैं. क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल दिस मच हाई, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई. तो हम इसे x से डिनोट करते हैं. वी बिगिन द सॉल्यूशन हियर. लेट द लेंथ ऑफ द शैडो cast by 10 meter 50 centimeter high pole be x, and what will be the unit, it will be centimeters we should take. मीटर सेंटीमीटर दोनों में बात हो रही है, हम सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं. सभी यूनिट्स को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और उससे कैलकुलेशंस हम देखेंगे, ईजी हो जाएगा. और फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट द शैडो 5 मीटर लॉन्ग, इसको हम y मीटर्स मान लेते हैं. लेट द हाइट ऑफ द पोल which casts a shadow how much, 5 meters long be y. इसको हम y मान लेते हैं. यूनिट अभी हम देख लेंगे क्या लेनी है. अब ये सारे इंफॉर्मेशन टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिससे सारी सिचुएशन हमें क्लियर हो जाए. तो उसके लिए वी टेक one long table, and since here we are having how many entries, or we should take on the next page, we take it on the next page because here the space is less. We take this table here on the next page in this elongated way. We draw the parts also of it. We take here one part and here also one part.
अब हमें क्या दिया गया है देखिए, एक तो दी गई है हाइट ऑफ द पोल, पहली जो क्वांटिटी है हाइट ऑफ द पोल, और हम सभी को सेंटीमीटर में लेने वाले हैं, देखते हैं कैसे। और फिर सेकंड क्वांटिटी जो दी गई है वो है लेंथ ऑफ शैडो, इसको भी हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब पहला केस क्या है देखिए, हाइट कितनी दी गई है, यहीं से देखते हैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये हाइट दी गई है पोल की 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब आप इसको सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, 5 मीटर मीन्स 500 सेंटीमीटर एंड 500 प्लस 60 इट विल बी 560 सेंटीमीटर। ये हो गई हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। और फिर शैडो की लेंथ हमें दी गई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम ले सकते हैं 320 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपके सेकेंड पोल की जो हाइट दी गई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर्स में लिख देते हैं। 10 मीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 1050 सेंटीमीटर। और ऐसे में इसकी शैडो की लेंथ हमने ली है x सेंटीमीटर, देखिए आप, सो वी हैव टेकन इट टू बी x। और फिर हमें दी गई है लेंथ ऑफ शैडो 5 मीटर्स लॉन्ग, तो अब इस केस में लेंथ ऑफ शैडो दी गई है 5 मीटर्स और वी कैन राइट इट एज 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर दी गई है, उसी को हम 500 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। और ऐसे में हमने जो हाइट ऑफ पोल है उसको y सेंटीमीटर मान लिया है और उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं y सेंटीमीटर। सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में आ गई। और अब यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटीज़ पर फोकस कीजिए, हाइट ऑफ द पोल और लेंथ ऑफ द शैडो। ऑब्वियस सी बात है, जितना ऊंचा पोल होगा उतनी ही लंबी उसकी लेंथ होगी शैडो की। और ऐसे में हम कह सकते हैं ये दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वी राइट हियर the length of the shadow is directly proportional to the height of the pole, and so here first case gives us the ratios will be equal। यहाँ से 560 upon 320, 560 upon 320, this will be equal to the ratio 1050 upon x। ये रेशोज़ इक्वल होंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो क्या हो जाएगा, 1050 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 320 और x और 560 अपनी अपनी पोजिशंस इंटरचेंज कर लेंगे। 560 विल कम इन द डिनोमिनेटर, कैंसिल दिस 0 बाय 0, 8 से कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, देन वी कैन कैंसिल अगेन बाय 7 हियर, 1 time, 5 times and 0 150 times, and so x will be equal to 15 4s are 60 and 600, and with this we write here x is equal to 600 centimeter, or we can take it to be 6 meters. 600 centimeter is equal to 6 meter, and what is x here? X is the length of the shadow of this high pole, and so we can write hence the length of the shadow cast by 10 meters 50 centimeter high pole is 6 meters। ये क्लियर है, इस पोल के जो द्वारा शैडो बन रही है उसकी लेंथ है 6 मीटर्स। अब हम यहीं से सेकेंड पार्ट करेंगे। फॉर दिस वी टेक द नेक्स्ट पेज, सेकेंड पार्ट। अब फिर से कौन से दो रेशोज इक्वेट करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 560 अपॉन 320 और यहाँ पर y अपॉन 500। वी टेक हियर 560 अपॉन 320, दिस इज इक्वल टू y अपॉन 500। देखिए सही लिखा है हमने, y अपॉन 500, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं y विल बी इक्वल टू 560 इंटू 500
अपॉन 320, दिस विल बी इक्वल टू y। यहाँ से बस इसको न्यूमरेटर में ले गए, कैंसिल दिस 0 and 0, divide by 8 7 times, 4 times, and divide by 4, here you will get 1 time 4, 2 times 8, and 5 times 20. So here we have y equal to 125 into 7. Y is equal to 7 5s are 35, 3 carried, 14, 15, 16, 17, 1 carried, 875 centimeter, or we can write 8 meters 75 centimeter. This is the height of the pole which casts a shadow of 5 meters. So we write, hence the height of the pole which casts 5 meter long shadow it is 8 meter 75 centimeter. So the height of the pole which casts 5 meter long shadow is 8 meter 75 centimeter. With this we complete this question. Next we have question 10. A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? यहाँ दिया गया है कि 25 मिनट्स में एक लोडेड ट्रक जो है 14 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है और हमसे पूछा है 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा, और इम्पॉर्टेंट क्या है, स्पीड रिमेन्स द सेम। तो जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, एक तो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड और दूसरा है टाइम टेकन। तो पहले हमसे जो पूछा है उसे वेरिएबल से डिनोट करते हैं। हियर वी बिगिन द सॉल्यूशन। लेट द distance traveled, here we have, by the truck in 5 hours be x किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इन द टेब्यूलर फॉर्म। वी फॉर्म वन टेबल, we write here, then we have this information. First thing that we have to write, the first quantity, it is the distance traveled by the truck. Distance traveled, and it is in kilometers. And the second quantity is the time taken. अब टाइम किस में लिखेंगे आप, ये तो मिनट्स में दिया है और ये आवर्स में दिया है, तो इन मिनट्स ही लेकर चलते हैं हम, आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। And so here the distance traveled when it is 14 kilometers, the time is 25 minutes. ये हमने यहाँ पर लिख ही लिया है मिनट्स में, और इसलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी हम यूनिट लिखना स्किप कर सकते हैं, because here we have taken kilometers in the quantity itself. We have mentioned it is in kilometers. So here when the distance traveled is 14 kilometers, the time taken is 25 minutes, and when the distance is x kilometers, we are taking it to be x kilometers, the time taken is 5 hours. Now how to represent this 5 hours? ये तो आवर्स में हो गया, और हम इसे जब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 hour हैज़ 60 minutes, so 5 hours will be 5 into 60, that is 300 minutes। इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है, और अब यहाँ पर हम
इनके रेशोज़ इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीड सेम है एवरी टाइम, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसे में हम लिखेंगे सिंस द स्पीड रिमेन्स द सेम, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रक would be directly proportional to the time, and so we can take the ratio 14/25 equal to here x upon 300। ये रेशो इक्वल होंगे और यहाँ से 14 into 300 upon 25, this is equal to x, and from here we can divide by 5 times and 60 times. Again we can divide by 5 12 times, and x is equal to 14 into 12. 12 4s are 48, 4 carried, 12 ones are 12, and 4 16. So it's 168 kilometers. And so with this we can give the answer. Hence the distance travelled by the truck in 5 hours is 168 kilometers. Okay. With this we complete all the questions from exercise 13.1. I hope all the questions are clear, the concept is clear, and now today that's all. Bye for now.